A competitive firm sells as much of its product as it chooses at a market price of 200 per unit. मार्केट प्राइस 200 रुपया है, जितना चाहे बेच सकते हो. It is a fixed cost of 600 and variable cost in rupees for different level of productions as shown in the following table. Use table 2 to answer the question number 49 to 53. When production is 40 units, the average total cost is, here what is the fixed cost? 600, 600, 600. When production is 40, so the average total cost is, now what will be the total cost? 6800 and 600 कितना होता है? 7800. 7800 divided by 40, you get, sorry, 7400, I'm sorry, 7400 divided by 40, you get 185 is the answer. लिख दो साइड पे. Okay. In the table, marginal cost per unit to 40 units of production. Now 40 units of production में क्या है? Okay. You move from 5040 to 6800. It means your marginal cost is 6800 minus 5040. 1760 is the marginal cost. But this cost 1760, डिफरेंस है 1760 का 1760 का, वो 5 यूनिट के लिए. कितने यूनिट के लिए? 5 यूनिट. So 1760 divided by 5, your answer is option C, 352. You are getting this? To maximize the profit, the firm should produce how many units? अभी ये फर्म कितना बनाएंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट देखनी पड़ेगी. सी ये 500 है, 500 और 940 पहुंच गया तो 440 डिवाइड बाय 5 करो तो इधर आपकी यहाँ पे तो 500 यूनिट बनाने का 500 रुपया खर्चा है तो 100 रुपया आया. यहाँ पे फिर 440 बढ़ गए तो 88 आ गया. फिर 1400 माइनस 940 डिवाइड बाय 5, how much you get? 92. And you are selling at what price? 200 per unit. 92. Then 1960 minus 1400 divided by 5, you get 112. Then 2700 minus 1960 divided by 5, you get your cost as 148 per unit. Marginal cost 2700 से 3700 पहुंच गया. नहीं, यहाँ पे this is 270. हाँ, ये 1000 divided by 5 how much? 200. नो, और इसके आगे देखो 5040 minus 3700 divided by 5, you get how much? 268. So what is here? क्या है बताओ? 200 है कि नहीं? ये आगे जाएंगे. एक 200 रुपया और 1 यूनिट 200 में बिकता है तो you should produce how many units? The answer is
30 यूनिट्स। ऑप्शन में क्या क्या है देखो। यस, 51 का आंसर क्या है? यू शुड प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। इफ द मार्केट प्राइस ड्रॉप्स फ्रॉम 200 to 112, the firm should be run response and should be firm short run response will be, अगर 112 है, क्या है 112, isn't it? Now 112 होगा तो you will stop your production at 20. Now here your cost is 1960 plus 1960 plus 600, that is 2560 is the total cost. Here it is 2560. Okay, and total revenue will be, total cost will be 2560 and total revenue will be 4000. 20 units into 200, so you will stop production at 20 units. What is the question about? 112 other firms short run will be, it will produce how many units? 20 units. Continue to produce the same number of units? No, it will not produce same number of units as before. If the market price rises to 352, तो क्या करेगी फर्म? 352 पहुंच गई मार्जिन कॉस्ट, मार्केट प्राइस। यहाँ पे फिर मार्जिनल कॉस्ट देखो 5040 6800 माइनस 5040 डिवाइड बाय 5, सो इट विल बी 352। 352 यहाँ आती है ना कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, नो? तो ये अगर प्राइस 352 हो गई तो हम लोग फिर 40 यूनिट्स बनाएंगे। तो फर्म विल प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स? कितने यूनिट्स बनाएंगे? 40 यूनिट्स बनाएंगे। आया समझ में कि नहीं? 54, which of the following statement is incorrect? If marginal revenue exceeds marginal cost, the firm should increase output. Yes, revenue ज्यादा है, बनाते रहो। Marginal cost exceeds marginal revenue, the firm should decrease the output. Yes, कम करना चाहिए ना, लॉस में जा रहे हो तुम, ठीक है नहीं? थोड़ा कम करो। कौन सा? 51, ये देखो 51 में सवाल क्या पूछा? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना? मैक्सिमम प्रॉफिट। तुम लोग को पता है कि तुम लोग का चीज कितने में बिकती है? 200 रुपए, 200 रुपए बिकती है ना। तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट ली, क्या ली? मार्जिनल रेवेन्यू मुझे पता है 200 है। देखो लिखा है ना, अ कॉम्पिटिटिव फर्म sells as much of its product as it chooses at a market price of 200 per unit. मतलब 200 में जितना चाहे बेच सकता है। तो हर एक यूनिट कितना रुपया देगा इसको? 200 रुपया, है ना? एक यूनिट बेच के 200 रुपये मिलेगा ना। इसने 5 यूनिट बनाए, कितने में? 500 में। तो एक यूनिट का कितना पड़ा इसको? 100। तो 100 पड़ा तो बेचेगा ना, 200 में बेचेगा कि नहीं? तो मैं बनाएगा कि नहीं बताइए। फिर अगर ये 10 यूनिट पे जाता है तो इसको एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है? 440 का एक्स्ट्रा खर्चा आता है। वेरिएबल कॉस्ट 500 से 940 हो गई, है ना? 440 डिवाइड बाय 5 करो, 5 तो कितना आता है? 88। तो मतलब 88 में माल बनता है और 200 में बिकता है, तो आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे बता? नेक्स्ट 5 यूनिट कितने में बनेंगे? 940 माइनस 1400 तो कितना होता है? 560, सॉरी 460 होता है ना यहाँ पे। हाँ 460 डिवाइड बाय 5 तो 92 में बनता है, 200 में बिकता है। फिर यहां पे 1960 माइनस 1400 560 डिवाइड बाय 5 तो 112 में बनता है।
और 200 में बिकता है तो बेचोगे कि नहीं? 112 में बनता है तो फिर उस तरह से 148 आता है, फिर 200 आता है, उसके बाद 268 होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे कितने यूनिट से 30 है ना, पक्का? तो क्या पूछा है? यू शुड प्रोड्यूस 30 यूनिट्स, है ना। फिर बोलता है अगर मार्केट का भाव 112 हो जाए तो 200 की जगह तो फिर हम कहाँ स्टॉप करते हैं? हमने यहाँ तो लिखा है ना सब, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं ना। कितने पे स्टॉप है? 20 यूनिट्स पे स्टॉप हो जाते हैं। हाँ आया समझ में? प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ना। फिर अगर 112 भाव है ना तो हम कितना बनाएंगे? ये फिर ये नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि बेच के 112 ही मिलता है, 200 नहीं मिलता है। तो फिर 112 से जब तक मिलेगा तब तक हम बनाएंगे ना। ये खर्चा 112 तक चलेगा ना हमारे को, ये 148 नहीं चलेगा। फिर आगे चलूं। इफ द मार्केट प्राइस राइजेस टू फ्रॉम 200 टू 352, मार्केट का भाव 352 हो गया, तो आप क्या करोगे? तो 268 में बनाओगे ना, आप बनाओगे, ये चलोगे ना आगे। अब यहाँ पे कितनी कॉस्ट है देखो, मार्जिनल कॉस्ट 6800 माइनस 5040 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे 352 आता है। 352 में बनाएंगे, 352 में बेचेंगे ना, तो बनाओगे कि नहीं? इसके आगे खतरा है, इसके आगे खतरा है, क्यों? 9060 माइनस 6800 डिवाइड बाय 5, तो फॉलो दिस। आया समझ में? 11900 माइनस 9060 तो कितना होता है? 2840 डिवाइड बाय 5, तो ये तो नहीं बनाएंगे ना, 568 में बनता है यहाँ पे। तो हम कहाँ रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे बताओ? 40 यूनिट। तो इसके लिए ना मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जानना जरूरी है। जैसे हमने ये सम में ना दोनों काम किए थे, ये वाले सम में हमने मार्जिनल कॉस्ट भी बनाया और मार्जिनल रेवेन्यू भी बनाया, है ना। फिर हमने बोला ये यहाँ पे रुक जाएंगे 6 यूनिट पे, सेम हो गया ना, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम हो गया। हो गया 53, मालूम पड़ा? Which of the following statement is correct? क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। तो जब रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आगे जाएंगे ना। आगे कब नहीं जाएंगे? अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है तो द फर्म शुड डिक्रीज द आउटपुट, फर्म शुड कम बैकवर्ड, नो, पीछे आना चाहिए ना। अगर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो आगे बढ़ेंगे, अगर कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो पीछे हटेंगे ना। ये दोनों सही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड व्हेन टोटल कॉस्ट्स आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अरे यार, जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम होंगे तो प्रॉफिट काहे का? प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो गलत बात है। Economic profits are maximized when marginal cost is equal to marginal revenue. Profits are maximized when marginal revenue equals to marginal cost. ये सही है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, सी वाला सबसे गलत है ना। ओके, फॉलो दिस। 55. A rational person does not act unless, rational person unless act नहीं करता है, कभी एक्ट करता है। एक्शन इज एथिकल, एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड्स मार्जिनल बेनिफिट्स। कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट्स कम है तो आप नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, ये भी गलत है। तो कभी करो काम, एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल बेनिफिट्स है ना वो मार्जिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है। एक्शन प्रोड्यूसेस marginal benefits that exceeds marginal cost. Action makes money for the person,
ये आंसर क्या है? यू विल नॉट एक्ट अनलेस, इस कंडीशन में आप एक्ट करोगे, मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। समझा? इफ मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट तो मोनोपोलिस्ट शुड क्या करोगे? 56 का क्या करोगे? इंक्रीज द आउटपुट ना, अभी पढ़ा हमने, रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू ज़्यादा मिल रही है, तो तुम लोग आगे बढ़ोगे, इंक्रीज द आउटपुट। सपोज द कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स लोगों को अच्छा लगने लगे। Which of the following statement is an accurate description of the impact on the market price of apple? There will be an increase in quantity demanded of apples and supply of apples. There is an increase in demand and supply of apples. There will be an increase in demand for apples and decrease in supply of apples. There will be increase in demand of apples and increase in quantity supplied। क्या? देखो बताता हूँ ये क्या स्टोरी होती है। ये क्वांटिटी सप्लाई सी है, ये है ना, देखो ये सप्लाई का है, ये डिमांड है। अब एप्पल का डिमांड बढ़ गया, ये पहले प्राइस था, अब है ना ये डिमांड बढ़ा ना तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ हो गई, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। सप्लाई का वही है ना, सप्लाई का तो वही चल रहा है। अब क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल हो गया, और अगर उसी कर्व पे क्वांटिटी बढ़ती है ना तो इंक्रीज इन क्वांटिटीज सप्लाइड होता है। देखो मैं बताता हूं, सुनो, ये ना सपोज डिमांड कर्व है, क्या ये? हाँ, आप यहां पर हो डिमांड कर्व के, अगर यहां से यहां आ गए ना, से ए से बी हो गया, ए टू बी है ना, इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर तुम लोग ने दूसरा कर्व बनाया और यहां पे पहुंच गए, से इधर पहुंच गया, ए टू सी पहुंच गया, तो ये भी डिमांड बढ़ गया है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अगर प्राइस की वजह से बढ़ा है तो क्वांटिटी वर्ड यूज करने का, और प्राइस के बगैर बढ़ा है तो, हाँ ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। सी है, डिमांड इंक्रीज हुआ है और प्राइस इंक्रीज होगा, और सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। देयर इज ए इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं भाई डिमांड तो बढ़ा है, एंड सप्लाई एंड इन द सप्लाई ऑफ फॉर द एप्पल्स देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एप्पल्स। नो, ये आंसर होगा। देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल्स एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सुनो मैं फिर से बताता हूं क्या है, देखो ये है ना, ये दो कर्व है D1 D1, हम लोग यहां पर थे, फिर यहां पर आ गए, ए से बी या फिर ए से सी। अब ए से बी तो भी क्वांटिटी ज्यादा है, हाँ कि नहीं? A to B quantity has increased, but we are on same demand curve, उसी कर्व पे है कि नहीं लेकिन हम लोग, ओके? The shift is due to fall in price, भाव कम हो गया इसलिए शिफ्ट है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
ओके, अगर तुम लोग ए टू सी शिफ्ट हो गए, बट वी आर ऑन न्यू डिमांड कर्व, हम लोग दूसरे नए कर्व पे आ गए, वी आर ऑन न्यू डिमांड कर्व, द शिफ्ट इज ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर, दूसरा कोई फैक्टर है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस की वजह से नहीं है, दूसरा कोई कारण है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। सेम चीज सप्लाई का है, सप्लाई का वो ऐसे होता है, से पी क्यू और आर, देखो ये क्वांटिटी है, सॉरी ये है, ये पी, ये क्यू और ये आर, अगर हम पी टू क्यू जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, पी से, क्योंकि सेम सप्लाई का है ना, और पी से आर जाते हैं ना, तो वी से इंक्रीज इन सप्लाई। व्हाट डू वी कॉल दैट, इंक्रीज इन सप्लाई। अब है ना, इसमें क्या हुआ, इस केस में ये डिमांड था और सप्लाई था, ये सप्लाई का और ये डिमांड का, फिर डिमांड बढ़ गया, अब डिमांड बढ़ गया तो हम लोग यहां से यहां पहुंच गए, है ना, तो डिमांड में हम लोग ने नए कॉपी आया ना, क्वांटिटी बढ़ी, तो वी से इंक्रीज इन डिमांड है, ये पॉइंट से यहां पॉइंट आ गया, तो इंक्रीज इन डिमांड है कि नहीं, डिमांड का अलग है, सप्लाई कर्व के हिसाब से हम लोग वही सप्लाई कर्व पे लेकिन दूसरे पॉइंट पे, तो वी से इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। व्हाट डू वी से, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो ये होगा ऑप्शन 4। आया समझ में। इन द लॉन्ग रन some firms will exit the market if the price of the goods offered for sale is less than, long run में you should cover minimum average cost, है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट कवर करना चाहिए कि नहीं, तो अगर तुम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट से भी कम भाव में बेचते हो, तो तुम लोग बोलोगे लॉस करके क्या फायदा, लॉन्ग रन में लॉस नहीं करोगे, शॉर्ट रन में वी शुड कवर व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन में वी शुड कवर average total cost to be in the business। ये 58 था। 59, which of the following statement about the price and marginal cost in a competitive and monopolized market is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? In competitive markets, price equals marginal cost. In monopolized markets, प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। ये तो सही लग रहा है 59 है ना। कंपिटिटिव मार्केट में क्या होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही होती है। एंड इन मोनोपोली मार्केट हमने देखा है एवरेज रेवेन्यू को, पहले मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को मिलता है, उस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट के भी ऊपर होगा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ चेक कर लेते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, इन मोनोपोलाइज्ड प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, नो। इन मोनोपोलाइज्ड मार्केट प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, नो। हाँ, प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, ये सही बात है, लेकिन ये बात सही नहीं है, प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है। मैं तुम लोग को डायग्राम से बताता हूँ ये क्या है। देखो, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये होता है एसी कर्व, ओके, या एसी कर्व छोड़ भी दो, समझो ये होता है ए आर इज इक्वल टू एम आर, है कि नहीं।
कि नहीं? पक्का? ये MC होता है ना। इक्विलिब्रियम क्या है? MC इज इक्वल टू MR, है ना, एंड AR इज इक्वल टू MR, तुमको पता है हमेशा। तो MC इज इक्वल टू AR है कि नहीं? और AR इज प्राइस। तो इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? MC इज इक्वल टू प्राइस। अच्छा, मोनोपोली में क्या होता है? ये होता है AR कर्व और ये होता है MR कर्व। अब ये दोनों यहां मिलते हैं। अब जो भी पॉइंट में मिलेंगे MC और MR मिलते हैं, से OM, उधर क्या होगा? प्राइस हमेशा ऊपर होगी कि नहीं? प्राइस हमेशा ऊपर होगी। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज हायर देन MC और MR। सो ये क्या है? इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, सही है। एंड इन मोनोपोलिस प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। आया समझ में कि नहीं?